صبح کا وقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں, کہہ دو سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح مدینے کے بازار میں, بھائی صبح صبح مدینے کے, اب سننا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں ملاقات ہو گئی. بھائی بازار میں دوستوں سے ملاقات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح مدینے کے بازار میں سامنے دیکھا کہ صحابی آ رہے. او ہو میرے دوستوں, بڑے پیارے صحابی. کون؟ حضرت ابو بکر. دیکھو میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں, میرا ساتھ دو. حضرت ابو بکر صدیق, اس کا واقعہ لمبا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے. بھائی دونوں کی بازار میں ملاقات ہو گئی. اب دوست تھے, بھائی دوست تھے, یار تھے, اور ان دوستی سے بڑھ کر تو کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی, ان کی یارانہ سے بڑھ کر کوئی یارانہ نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ عمر صبح صبح فی السوق, بازار میں, ارے صبح صبح بازار میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو آج صبح صبح بازار چلا جاؤں, جو کچھ اچھا مل جائے تو لے لوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, چل ایک کام کرے, مچھلی خرید لے. کیا خریدے؟ میرے دوستو ہمارے یہاں مچھلی خریدنا کوئی نوائی کی بات, لیکن صحابہ کرام کیا مچھلی یہ کبھی کبھار نصیب ہوتا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چل مچھلی خرید لے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا, ارے کیسے خریدے, میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں, میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ میں مچھلی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار محبت سے کہا چل تو صحیح, مچھلی خریدتے, آدھا پیسہ تو دے دے, آدھا پیسہ میں دے دوں, آدھی مچھلی تو گھر لے جا, آدھی مچھلی میں گھر لے جاؤ. ارے نہ کھانے سے تو آدھا کھانا. اچھا گئے, ماشاءاللہ ایک مچھلی مل گئی. حضرت ابو بکر نے آدھے پیسے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھے پیسے. حضرت ابو بکر تو انصاف کرنے والے, بھائی ان سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے دو حصے کر دیے. آدھا حصہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹھیلی میں رکھا, اور آدھا حصہ کس کی ٹھیلی میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ٹھیلی میں رکھا. اور میرے دوستو یاد رکھنا, حضرت ابو بکر اپنے گھر کی طرف چلے, حضرت عمر اپنے گھر کی طرف چلے. اور آج بھی ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ, ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ, 22 جلدوں میں. کتنی جلدوں میں؟ 22 جلدوں میں. اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں حضرت ابو بکر کا گھر اور حضرت عمر کا گھر آج کے زمانے کے اعتبار سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. 2.5 کلومیٹر, مطلب بہت دور رہتے تھے. 2.5 کلومیٹر تو اچھا خاصا ہو گیا. حضرت ابو بکر کہیں رہتے, حضرت عمر کہیں رہتے. خیر میرے دوستو چلے, حضرت ابو بکر اپنے گھر میں گئے, حضرت عمر اپنے گھر میں گئے. اب آپ ہی بتاؤ, حضرت عمر جب اپنے گھر میں گئے تو مچھلی کس کو دی ہوگی؟ ارے گھر میں کس کو دی ہوگی؟ بیوی کو دی ہوگی. اور اس وقت حضرت عمر کی بیوی کا نام بھی کتابوں میں لکھا حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کی بیوی کا نام کیا؟ حضرت عاتقہ. تو انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیا, بھائی بیوی کو دے دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو دے دیا. اور ایک بات بتا دوں, ہم لوگوں کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب ہے, ان کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب تھا. ان کے کھانے کا سسٹم کیا تھا بھائی؟ صبح میں جو کھایا کھایا, دوپہر میں کچھ نہیں, اب سیدھے عشاء کے بعد کھانا یا مغرب کے بعد کھانا. کبھی مغرب کے بعد کھانا تو کبھی عشاء کے بعد کھانا, درمیان میں کھاتے. وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ صبح میں چائے پیا, 10 بجے پھر چائے چاہیے, شام کو 4 بجے پھر چائے کے ساتھ کچھ اور چاہیے, پھر دوپہر میں کھانا اور مغرب کے بعد کھانا اور عشاء کے بعد کھانا. ہمارا تو ایسا لگتا کہ یہ پیٹ نہیں مرغی کا قبرستان ہے. بھائی ہمارا تو کھانا بڑا عجیب کھانا ہوتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی دے دی حضرت عاتقہ اپنی بیوی کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مچھلی اپنے گھر والے کو, گھر کی عورتوں کو دے دیا. اور چلے, اب ان کا کام کیا تھا وہ سننا. حضرت عمر, اور بھائی ہم بھی تو یہی کریں گے نا, بازار سے آئیں گے تو کس کو ٹھیلی دے دیں گے؟ وہ جوہا پورا والوں کس کو ٹھیلی دیں گے؟ آپ کے چہرے سے لگتا ہے آپ لوگ پکاتے ہو. ارے بیوی کو دے دیں گے نا. حضرت عمر نے بھی دے دیا, حضرت ابو بکر نے بھی. اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ اب کام پڑ جاتے تھے. حضرت عمر بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے, حضرت ابو بکر بھی کپڑے کی تجارت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑے کی تجارت کرتے, حضرت ابو بکر بھی کپڑے کی تجارت کرتے. لیکن ڈیوائیڈ, کچھ وقت کپڑے کی تجارت ہوگی اور کچھ وقت ہم امت کے لوگوں کے پاس جا کے نبی کے دربار میں بلائیں گے, اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو ملائیں گے. کہو اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو. بھائی یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے نا, بلکہ ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملا دے. یہ دعوت کا کام کر لے, اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. تو خیر میرے دوستو بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت ابو بکر بھی اپنے کام میں لگ گئے, حضرت عمر بھی اپنے کام میں کرتے کراتے عشاء کا وقت. کون سا وقت؟ عشاء کی نماز ہو گئی. جیسے عشاء کی نماز ہو گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل رہے, حضرت ابو بکر بھی مسجد سے باہر آ رہے. پھر دونوں دوستوں کی ملاقات ہو گئی. تو حضرت ابو بکر نے مسکراتے کہا, عمر جا گھر پر جلدی جا, آج تو مچھلی پکی ہوگی, آج تو مچھلی. تو عمر نے بھی ہنستے ہنستے کہا, اکیلے تھوڑی کھاؤں گا, تو بھی تو گھر میں آج مچھلی کھائے گا. ارے بھائی تیرے گھر میں بھی تو آدھی مچھلی, میرے گھر میں آدھی مچھلی, تم بھی مچھلی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف. میرے دوستو توجہ کے ساتھ سننا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, گھر کے اندر داخل ہوئے. اور بھوک لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی؟ اور عمر جیسا میرے دوستو مرد مجاہد, مضبوط پہاڑ. ارے عمر تو مضبوط پہاڑ تھا کہ نہیں تھا؟ ارے کہو نا, ایمان کا مضبوط اور جوانی.
भाई जवानी और ईमान और रूहानियत और मजबूताई, ओ हजरत उमर का मुकाबला कौन करे? अरे हजरत उमर का कोई मुकाबला कर सकता? तो बताओ, जो जितना मजबूत होगा उसको भूख भी तो ज्यादा लगती होगी ना? अरे लगती होगी कि नहीं लगती होगी? अब हम लोग भी तो मजबूत बनने की बड़ी फिक्र करते हैं भाई, हम लोग भी तो मजबूत बनने की बड़ी फिक्र करते हैं। हमारे जवानों को देखो, जिम में जाते हैं। अरे जिम में जाते कि नहीं जाते? एक तरफ मजबूत बनता है जिम में जाके, और अपने घर में आता, ड्रेसिंग रूम में आता तो चेहरे पे फेयर एंड लवली लगाता है ना, ये भी क्रीम लगाता है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखता हूं। अब मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में आए, फौरन घर में आने के साथ ही अपनी बीवी को कहा दस्तरखान बिछाओ, बहुत भूख लगी, इसलिए कि वो मछली याद आ रही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, फौरन बीवी ने दस्तरखान बिछाया, लेकिन दस्तरखान जब बिछा तो हज़रत उमर ने पूरे दस्तरखान पर देखा, मछली नहीं। अरे कहो मछली नहीं, वही सूखी दाल रोटी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अपनी बीवी को कहा माँ बालू समक, फौरन पूछा माँ बालू समक, व्हाट हैपेंड अबाउट फिश? अरे मछली का क्या हो गया? अरे सुबह मछली लेकर आया था, वो मछली दस्तरखान पर नजर नहीं आती। अब वो बीवी हजरत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बेचारी अल्लाह की वलिया, वो भी साहबिया, कहने लगी उमर फारूक को कहा, अरे मेरे शोहर, मेरे सरताज, अभी मछली के बारे में कुछ मत पूछो, जो है वो खा लो, पहले पेट भर लो, उसके बाद मैं तुमको मछली की दास्तान बताऊंगी। ओ उमर का पारा, उमर के गुस्से को कोई बर्दाश्त कर सके? अरे हजरत उमर का पारा, टेम्पर एकदम गर्म, खड़े हो गए, दस्तरखान पर खड़े हो गए और कहा कसम अल्लाह की, एक लुकमा खाऊंगा नहीं, एक कचरा पानी का पीऊंगा नहीं, पहले मछली की दास्तान बताओ, पहले मछली की दास्तान बताओ, वरना खाऊंगा भी नहीं, पीऊंगा भी नहीं। फिर कसम खाई, अल्लाह की कसम, जब तक मछली का मसला हल नहीं होगा मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा। वो बीवी ने बहुत समझाया, लेकिन ये तो कसम खा ली। अब बीवी हजरत आतिका क्या करे तो क्या करे? उमर का जलाल, उमर का रौब, दबदबा। वो हजरत आतिका ने कहा कि सही बात यह है कि तुम मछली सुबह में लाए। कब लाए? मैंने सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, शाम से लेकर अब तक मैंने मछली को पकाया, तपाया, गरम तेल में रखा, तवे पर रखा, तन्नूर पर रखा, लेकिन मछली न पकती है, न गरम होती है, न तली जाती है, न सेके जाती है, बल्कि जब जब मैं उसको आग पर रखती हूं एक नूर निकलता है, जो निकलता है जमीन से और पहुंचता है आसमान पर। हज़रत उमर को समझ में नहीं आया कि मछली नहीं पकी, और वो भी कितनी, पूरी की आधी? अरे कितनी? हज़रत उमर तो बड़े गुस्से हुए अपनी बीवी आतिका पर। अरे ये क्या बात हो गई, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, और अभी तक तेरे से एक आधी मछली नहीं पकी। हज़रत उमर ने कहा हाथी भी सबक ला, मछली मुझको दे, हाथी भी सबक, मछली मुझको दे, मैं उसको पकाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे के अंदर गए और वहां बड़ा तन्नूर था, बस आग लगाई, बस जैसे नीचे आग लगाई धुआं उठने लगा, गरम गरम तवे को रखा, तवे को बिल्कुल गरम कर दिया, उसके बाद में मछली को रखा। अब मछली को कभी इधर पलटाया, कभी उधर पलटा, कभी इधर पलटा, कभी उधर पलटा। अरे मछली को पलटाते गए, पलटाते गए, पलटाते गए, लेकिन उमर फारूक फरमाते, उमर जैसा उमर थक गया, लेकिन मछली के ऊपर एक काला धब्बा भी नहीं आया। मछली के ऊपर एक, और हज़रत उमर भी देखते थे नूर उठता है, आसमान की तरफ जाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थक गए भाई, थक गए इसलिए कि नीचे धुआं देखो तो निकल रहा भाई, धुआं निकल रहा, और तवा देखो तो बिल्कुल गरम भाई, तवा भी गरम, नीचे धुआं भी निकल रहा, और सब कुछ गरम है, लेकिन मछली न गरम होती, न तपी, न गरम हुई, और उसके ऊपर काला निशान भी नहीं आया भाई। हज़रत उमर भी आखिर में थक गए। क्या किया सुनना, क्या किया? मछली को लिया, बीवी को कहा वो ठेली ला जो सुबह लाया था, वो सुबह बाजार की ठेली, मछली को उसमें रखा, और बीवी को कहा मैं जा रहा हूँ। बीवी को कहा मैं, अब बताओ मेरे दोस्त, आधी रात हो गई होगी कि नहीं हुई होगी? ईशा के बाद आए भाई, उस जमाने में ईशा भी तो देर में होती थी ना। हाँ, ईशा के बाद आए, और ईशा के बाद आने के बाद फिर ये सारा वाकया हुआ, आधी रात हो गई होगी। ठेली लेकर चले, अपनी बीवी को कहा मैं जा रहा हूँ। तो बीवी हज़रत आतिका कहने लगी कहाँ जा रहे? अइन तज़हब, अरे कहाँ जा रहे आप, आधी रात को कहाँ जा रहे? तो कहा तुझे क्या मालूम, मैं जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ अबू बकर के घर पे जा रहा हूँ। किसके घर पे जा रहा हूँ? वो बीवी ने कहा आधी रात को किसी के घर पे जाएंगे, वो भी मछली को लेके, आधी मछली, वो भी अबू बकर के पास लेके जाएंगे। तो मेरे दोस्तों उनके अंदर ये सब तकल्लुफात नहीं थे। हज़रत उमर ने कितना प्यारा जवाब दिया, अरे जाऊंगा, जाऊंगा अबू बकर के घर पे जाऊंगा, अगर जागते होंगे तो मछली का मसला हल हो जाएगा, और अगर नहीं जागते होंगे तो वापस आ जाऊंगा। भाई नहीं जागते होंगे तो चले भूखे प्यासे। अरे कहो कैसे? ठेली हाथ में ली और चले, साथ में कौन? हज़रत उमर। अरे जोर से कौन? हज़रत उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मछली को लिया, ठेली में रखा और चल पड़े। आधी रात को चल पड़े, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, अंधेरा छाया हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कसम अल्लाह की, इतना अंधेरा था कि मुझे मेरा हाथ भी नजर नहीं आता था। मैं हाथ भी नजर
उस जमाने में लाइट बल्ब ट्यूबलाइट कुछ नहीं था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु चले अंधेरे में चल रहे, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा महसूस हुआ कि कोई आ रहा है। हजरत उमर को महसूस हुआ कि कोई नजर तो नहीं आ रहा। भाई दूर से अंधेरे में कोई आता हो तो दिखेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा महसूस हुआ कोई आ रहा है, लेकिन उमर तो उमर थे, कदम की आहट से समझ गए जो आ रहा है वो मेरा यार अबू बकर आ रहा है। कौन आ रहे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो कदम के चलने से समझ गए। फौरन हजरत उमर ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अबू बकर। अबू बकर मुझे लगता तुम ही आ रहे हो। तो हजरत अबू बकर भी समझ गए। जब उमर समझ गए तो अबू बकर क्यों ना समझे, उन्होंने भी कहा वालेकुम अस्सलाम या उमर। सलाम सलाम जवाब हो गया, दोनों करीब आए। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा उमर ऐसा लगता मछली लेके आया। उमर ने कहा तुझे कैसे पता? तो अबू बकर ने कहा मैं भी तो लेके आया। तो हजरत उमर ने जानबूझकर कहा मछली लेकर आए, क्यों? तो अबू बकर ने कहा मेरी बीवी ने सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात तपाया, गरम किया, लेकिन ये मछली गरम हुई नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो तेरे पास ही आ जाऊं, इसलिए कि आधी टुकड़ी तेरे पास है, तेरी गरम हुई कि नहीं हुई वो भी तो मालूम करूं। और लेकिन हजरत अबू बकर ने ये कहा कि वही दाल सूखी रोटी खा के आया हूं, दाल सूखी रोटी खा के। हजरत उमर कहते मैं तो कुछ बोला ही नहीं कि मैं तो कसम खा के आया हूं, मैं तो बीवी से लड़ के आया हूं। हजरत उमर कहते मैं कुछ नहीं बोला, मैंने भी कहा कि रोटी का अब सुनना, रोटी का, अरे ये मछली का मामला, और वो भी कह रहे मछली का। दोनों खड़े, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता, मछली क्यों पकी नहीं, क्यों तपी नहीं, इसलिए आज तक हमने कितनी मछलियां खाई, आज ये मछली को क्या हो गया। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़े, क्या बोल पड़े कि चलो एक काम करते हैं, आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, भाई नबी का तो दरबार है ना, बड़े का तो दरबार है ना, चलो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सासम के दरबार में जाए। जैसे कहा ना नबी के पास जाए, हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आए और रोते रोते कहा नहीं नहीं नहीं, नबी के पास नहीं, आधी रात को नबी के पास जाएंगे। अरे आधी रात को नबी के तहज्जुद का वक्त, और नबी की तहज्जुद हो अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों कह दो सुभान अल्लाह। हम भी तहज्जुद पढ़ते होंगे, लेकिन नबी की तहज्जुद और हमारी तहज्जुद में जमीन आसमान का फर्क है। हम तहज्जुद पढ़ते हैं जमीन पर पढ़ते, नबी फरमाते मैं तहज्जुद पढ़ता हूं तो मेरी रूह अल्लाह के अर्श पर पहुंच जाती है। अभी पहुंचा, कहां तक मामला पहुंचा? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते इधरा नूरा, दोनों ने उजाला देखा, समझ में नहीं आया कौन सा उजाला। अबू बकर और उमर आगे बढ़ते गए, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद समझ में आया मेरे नबी दरवाजे पर खड़े और आपके चेहरे की चमक और दमक सामने नजर आती है। अबू बकर और उमर फरमाते हमें पहले अपना हाथ भी नजर ना आया, लेकिन नबी के चेहरे के नूर की वजह से हमको मदीने के दरख्तों का पत्ता भी नजर आ गया। हजरत अबू बकर हजरत उमर चले, नबी के पास से पहुंचे। अब दोनों हैरान, दरवाजे पर कौन खड़े आधी रात को? आका साहब भाई हैरान होंगे कि नहीं होंगे? हजरत अबू बकर उमर दोनों आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल आप दरवाजे पर क्यों खड़े, या आधी रात को आप दरवाजे पर क्यों खड़े? हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा अरे पूछते हो क्यों खड़ा हो? तुम दोनों के इंतजार में खड़ा हो, तुम दोनों के इंतजार में, अल्लाह ने मुझे बताया तुम दोनों मेरे पास आ रहे हो तो मैं इंतजार में खड़ा हूं। अरे अबू बकर उमर खुश हो जाओ, तुम चलते हो जमीन पर और आवाज आती है आसमान पर। चलो आ गए अबू बकर उमर, बैठ गए घर के अंदर। अब सुनना बहुत अजीब बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, बाजू में हजरत अबू बकर, उनके बाजू में हजरत, और अल्लाह ने ऐसा बिठाया कि आज आराम भी कर रहे तो इसी तरह आराम कर रहे। अरे कहो ना सुभान अल्लाह, आज आराम भी कर रहे हैं मदीने में, इसी तरह आराम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अबू बकर उमर, अल्लाह के रसूल अबू बकर उमर बैठ गए। अच्छा हुआ क्या, अजीब बात हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें याद आ गई, अबू बकर को पूछने लगे, अबू बकर जवाब देने लगे, फिर हजरत अबू बकर कुछ पूछने लगे, हमारे नबी जवाब देने लगे। हजरत अबू बकर और हमारे नबी बातों में मशगूल हो गए। कौन बैठे थे तीसरे? उमर। वो उमर बैठे थे, वो बेचारे ऊपर नीचे परेशान हो रहे। क्यों परेशान हो रहे? कि खाया पिया, अब भूख लगी है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु करे तो क्या करे, कभी नबी का चेहरा देखे, कभी अबू बकर का, कभी नबी का, कभी अबू बकर का। हजरत उमर को बर्दाश्त नहीं हुआ, हजरत अबू बकर के पांव पर यूं हाथ मारा, यूं हाथ मारा। हजरत अबू बकर मुड़े, क्या हुआ उमर? कहा सब बातें छोड़, पहले मछली का मामला हल कर, ये जो ठेली में मछली है पहले उसका मामला हल कर, बाकी सब बातें रह। बस इतना कहा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख गए। हमारे नबी ने कहा उमर क्या बोल रहे हो, जरा जोर से बोलो ना, अबू बकर को आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हो, अरे मुझे भी तो सुनाओ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन हम तो जिस मसले के लिए आए हैं वो मछली का मामला है, अगर आपका एहसान होगा पहले मछली का मामला हल करो। तो हमारे नबी ने कहा हाँ पहले मछली का मामला हल करता, लेकिन उमर ये बता गुस्से में कसम क्यों खाया?
یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا؟ حضرت عمر کا چہرہ کیسا ہوا ہوگا؟ کیا کہا؟ صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، یہ میرے اندر یہ معاملہ ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر اب قسم کھائی ہے اور پوری ہوئی تو ٹھیک، نہیں ہوئی تو کفارہ دینا پڑے گا۔ دینا پڑتا کہ نہیں دینا پڑتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سب سے پہلے میں مچھلی کا معاملہ حل کرتا، لیکن تو گھر میں قسم کھا کر کیوں آیا؟ پورا کرے تو ٹھیک ہے ورنہ کفارہ دینا پڑے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ کہا، میں قسم کھا کر آیا، یہ میری غلطی ہو گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سن لے، عمر سن لے، تمہاری بیویوں نے صبح سے شام تک مچھلی کو پکایا، شام سے رات تک مچھلی کو پکایا، عمر تو نے بھی مچھلی کو پکایا، ابو بکر تو نے بھی مچھلی کو پکایا، لیکن مچھلی پکی، زور سے کہو مچھلی پکی۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ابو بکر و عمر اگر جبرائیل بھی آ جائے اور اس مچھلی کو پکائے تو خدا اس کو پکنے نہیں دے گا۔ اور فرمایا جبرائیل کی کیا بات کرتے ہو، اگر میں بھی اس مچھلی کو پکاؤں اللہ اس کو پکنے نہیں دے گا، اس کو تپنے نہیں دے گا، اس کو گرم ہونے نہیں دے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون سی مچھلی ہے جو آگ میں جلتی بھی نہیں اور تپتی بھی نہیں، گرم ہوتی بھی نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اب وجہ بتائی، کہو سبحان اللہ، ایسے نہیں زور سے، اس کی وجہ بہت بڑی ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ، ایک بار کہہ دو اللہ اکبر۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر و عمر ھذا ھوا السمک، ھذا ھوا، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ھوا السمک، یہ وہ مچھلی جو گرم نہ ہوئی، نہ تپی، نہ تلی گئی، نہ سیکی گئی، نہ اس کے اوپر کالا دھبا، نہ اس کے اوپر کالا نشان۔ ہمارے نبی نے فرمایا ھذا ھوا السمک، یہ وہ مچھلی ہے الذی یصلی علی فی البحر، یہ وہ مچھلی ہے جو سمندر میں تیرتی تھی اور تیرتے تیرتے مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی، جو سمندر میں تیرتی تھی اور مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ میرے دوستو مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مچھلی جو سمندر میں تیرے اور مجھ پر درود پڑے اللہ نے اس پر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا۔ اگر ایک مچھلی درود پڑے دنیا کی آگ حرام ہو جائے، ایمان سے اگر ایک مچھلی درود پڑے، تیرتے تیرتے درود پڑھے، اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جائے، میرے دوستو میں اور آپ کام کرتے کرتے درود پڑھے، قسم اللہ کی جہنم کی آگ تو دور، جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جائے۔ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ بہت آہستہ بولتے ہو آپ لوگ، ایک تو بلیشور بلاتے بہت کم ہے، اور پھر جب آتا ہوں تو آپ لوگ جواب بھی نہیں دیتے ہو۔ بولو نا بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے نبی کی شان میں آپ کو بتاؤں، دل خوش ہو جائے گا آپ کا۔ بتاؤ آپ کو وہ کیا ہوا معلوم؟ میں یہ بتاؤں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے حکومت دی انسانوں پر، جناتوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، پرندوں پر۔ یوں کہہ دو کہ آپ انسانوں کے بھی نبی، جناتوں کے بھی نبی، چرند درند پرند کے بھی نبی، بلکہ سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی۔ بولو محمد۔ اور یہ مہینہ بھی کون سا؟ ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، ہمارے نبی کا جانا بھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی سفر پہ جا رہے ہیں۔ بولو کہاں جا رہے ہیں؟ وقت ہے نا آپ کے پاس، سنیں گے نا؟ ہمارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ سفر پہ۔ ساتھ میں حضرت عمر۔ ارے بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ تو آپ کو معلوم ہے؟ ارے معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کیا رعب اور دبدبہ تھا! حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا، وہ کسی گلی میں پاؤں رکھتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے۔ بولو وہ گلی میں کیا رکھتے تھے؟ پاؤں۔ ہمارے نبی مسکراتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کا رسول کیا بات ہے، میں آتا ہوں کوئی گلی میں آتا ہوں اور آپ مسکرانے لگتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمر مسکراؤں نہ تو کیا کروں، تو جس گلی میں پاؤں رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو اس کو بھاگتا بھاگتا دیکھتا ہوں تو میرے کو مسکراہٹ آتی ہے کہ عمر تیرا رعب اور دبدبہ کیسا ہے کہ تو پاؤں رکھتا ہے وہاں سے شیطان۔ اور ہمارا الٹا ہے،
हम पाँव रखते तो ओ माय ब्रदर कम हियर। मुझे एक मिला, बहुत जमाने पहले की बात है, लॉकडाउन से भी पहले की बात करता हूँ, एक मिला, चेहरे पे दाढ़ी वाड़ी नहीं, मेरे को कहता है मौलाना ये सूरत में इतनी नाइंसाफी होती है, इतने हालात आते हैं, ये तो उमर होने चाहिए, तो उमर कहाँ पे? हाँ डिस्ट्रिक्ट सूरत में कौन होने चाहिए? तो उमर, इंसाफ कर दे। मैंने कहा बेटा उमर होते तो तू भी नहीं होता ना, मैं भी नहीं होता। ऐसा जोर का तेरे को तमाचा मारे होते, दाढ़ी उड़ाता रे, इतना जोर का तमाचा मारे होते, जिनको देख के शैतान भागता था, तू कहां से कहां निकल जाएगा। तो एक सफर है जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन है बोलो? नहीं साथ में बोलो कौन है? हजरत उमर। अच्छा सफर हो रहा है, सुनना हमारे नबी को उम्मत से प्यार देखना। अचानक हमारे नबी का रास्ता देखो ऐसा, ये ऊंट जा रहा है, साथ में कौन है? हजरत उमर है, जा रहा है। वहां से एक ऊंट और जा रहा है, भाई होता है रास्ते में ऊंट एक और जा रहा है, लेकिन वो जो ऊंट जा रहा है ना उसके ऊपर एक बद्दू बैठे हुए, बद्दू यानी आराबी, देहाती, और बिल्कुल वो पगड़ बड़ा पगड़, मेले कपड़े, जानवर भी मेला, वो वहां से ऐसा गुजर रहे। अच्छा वो जो बद्दू जा रहे हैं ना, देहाती विलेजर, वो आराबी जा रहे, उनके पास एक ठेला भी रखा हुआ है, वो ठेला। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इधर है, उनका रास्ता, हमारे नबी ने कहा उमर उन्जुर इला दालिका रजुल, हमारे नबी ने कहा उमर देखो वो दिख रहे। तो हज़रत उमर ने कहा दिख रहे, वो देहाती है, बद्दू है, आराबी है, जंगल के रहने वाले, वो अपना रास्ता जा रहे, हम अपना। हमारे नबी ने कहा नहीं, उनको जाकर कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, दावत देना है। अरे बोलो उनको दावत और तबलीग करना है। हम तो ये समझते हैं कि जो 3 दिन जावे वही दावत तबलीग का काम करे, जो चिल्ला जावे। अरे दावत तबलीग तो हमारे बदन के खून में होना चाहिए, जैसा खून दौड़ता है ना वैसा अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर हमारे बदन में दौड़ना चाहिए। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर यानी भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, कलमे की दावत देना। मेरे प्यारो इसी वजह से अल्लाह ने हमको सबसे अच्छी उम्मत कहा है। हम अच्छी उम्मत क्यों हैं? कुन्तुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नासि तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये आखिरी उम्मत, मेरे आखिरी नबी की आखिरी उम्मत, अल्लाह फरमाते बेहतरीन उम्मत है। हम बेहतरीन है, क्यों बेहतरीन है? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बुराइयों से रोकते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। तो हमारे नबी ने उमर को कहा उमर वो देखो जा रहे, उनको भी हमको कलमा देना है। तो हज़रत उमर ने क्या कहा मालूम? अल्लाह के रसूल रहने दो, हमारा रास्ता इधर है, उनका रास्ता उधर। और वो देहाती है, बद्दू है, जाहिल है, जंगल का रहने वाला है, उनको दावत देने जाएंगे ना वो गालियां देगा। और इन लोगों की आदत है चेहरे पे थूकने की, चेहरे पे थूकेगा, मालूम नहीं वो हमारे साथ क्या मामला करेगा। अल्लाह के रसूल हम जा रहे हैं ना सफर में, हम अपने रास्ते पे, वो हमारे नबी को कितनी मोहब्बत होगी। फरमाया उमर तुम्हें ना आना हो तो मत आओ, मैं जाऊंगा। वो गाली देंगे ना, वो चेहरे पर थूकेंगे ना, वो मारेंगे ना, मुझे गवारा है, मगर मेरा उम्मती जहन्नम में जाइए, गवारा नहीं। वो मेरा तो उम्मती, तुमने तुम्हारी आंखों से देखा उमर, तुम्हें जाहिल, देहाती, जंगली, जंगल का रहने वाला नजर आए, मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे मेरा उम्मती नजर आया है। तो हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं पीछे रहूंगा, मैं तो आपकी हिफाजत के लिए कह रहा हूं, चलो चले। अब ऊंट का रास्ता, हालांकि रास्ता इधर था, अब रास्ता मोड़ा, गए वहां जाकर उनको कहा, वो जमाने में किसी का ऊंट अगर रोकना हो ना तो ऊंट की लगाम को पकड़ लेने का, तो सामने वाला समझ जावे कि इसको कोई काम है। तो हज़रत उमर ने जाके लगाम को पकड़ लिया, तो वो जो देहाती थे ना उन्होंने अपना ऊंट रोका, क्या काम है? तो हमारे नबी उतर गए, ऊंट से उतर गए, कहा मैं मोहम्मद, बोलो मैं मोहम्मद, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर, ला इलाहा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत में जाओगे, मुझे सब गवारा है, मगर तुम जहन्नम में जाओ ये मुझे गवारा। वो देहाती, वो तो जंगली देहाती का, अच्छा तुम मोहम्मद है, नाम तो तुम्हारा सुना है, नाम तुम्हारा सुना है, लोग तुम्हें जादूगर कहते हैं, लोग तुम्हें नजूमी कहते हैं,
लोग तो तुम्हें मजनून भी कहते हैं और तुम मेरा रास्ता रोकते हो। सच बताओ, हमारे नबी को ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? अरे बोलो ना, मक्का वाले क्या कहते थे? जादूगर है, नजूमी है, मजनून है। फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा न तो जादूगर है, न तो नजूमी है, न तो शायर है, न तो मजनून है, बल्कि नबियों के नबी हमारे नबी। बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी ने उस वक्त क्या कहा? तुझे जो कहना है वो कह दे, तू मुझे जादूगर कह दे, मजनून कह दे, मगर ला इलाहा। बोलो ला इलाहा। वो तो देहाती थे ना, देहाती। जो गाली देनी थी दी, जो आदत के मुताबिक गाली देना था वो गाली दिया, लेकिन एक बहुत खराब जुमला कहा। क्या फरमाया मालूम? वो देहाती ने कहा, क्या कहा? ये तो शुक्र मानो कि मेरे पास तलवार नहीं है, वरना मोहम्मद मैं मामला ही मुकम्मल कर देता। वो देहाती कह रहा है, शुक्र मानो कि मेरे पास तलवार नहीं है, वरना कत्ल कर देता। तो हजरत उमर ने क्या कहा मालूम मेरे नबी को? हमारे नबी उसके पास नहीं है, मेरे पास है। यानी मेरे पास है, आप कहो तो इसके टुकड़े कर दूं अभी। हमारे नबी ने फरमाया महलन या उमर, उमर खामोश रहो, खामोश रहो, तुम यहीं पर रहो, इनसे मुझे बात करने दो। हमारे नबी ने फिर दावत वाला काम शुरू किया। बोलो सुभान अल्लाह। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे, कलमा पढ़ो। वो देहाती जो था ना, उसके पास एक ठेला रखा था। बोलो क्या था? क्या? उसने वो ठेला लेके जमीन पर पटका यूं, और खुद भी ऊंट से उतरा, नीचे उतरा और कहा कि इसमें मरा हुआ जानवर है, मैं शिकार करके आया, खून में लथपथ है, ये मरा हुआ जानवर है, खून में लथपथ है, अगर आपने इसको जिंदा कर दिया तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। अब ठेले में जानवर है, और वो भी कैसा जानवर है? मरा हुआ, और खुद शिकार करके आए, और गंदा गंदा ठेला, हाँ, खून में लिपटा हुआ ठेला, और वो जानवर भी गो। बोलो गो, जिसको उर्दू में गो कहते हैं, अरबी में रब्बुन। बोलो क्या कहते हैं? रब्बुन कहते हैं। वो जानवर है जो दिखने में भी बहुत शक्ल का बहुत अजीब होता है, तो वो जानवर है, और वो मरा हुआ जानवर है। वो कह रहा है अगर तुम इसको जिंदा करो तो मैं कलमा पढ़ूंगा, बाकी जिंदा नहीं करो तो मैं कलमा पढ़ने वाला नहीं। हमारे नबी, ये जब बात हुई ना, तो हजरत बाजू में कौन थे? हजरत उमर ने कहा सुनो, वो देहाती को कहा क्या जिंदा करने का? मेरे नबी ईमान लेकर आए हैं, मुर्दे को जिंदा करने के वास्ते नहीं आए। भाई हमारे नबी के दुनिया में आने का मकसद ईमान, इस्लाम, एहसान। हमारे नबी इसलिए आए कि मुर्दे को जिंदा करे। अल्लाह ने क्या फरमाया? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने नबी को हिदायत के वास्ते भेजा है। मुर्दे को जिंदा, हमारे नबी ने हज़रत उमर को कहा रहने दो, ये जो कहता है ना वो होगा। कहा क्या? तुमने क्या कहा? कहा ये मुर्दा जानवर है, इसको जिंदा करो। हमारे नबी ने फरमाया सिर्फ जिंदा नहीं होगा, मुझसे बात भी करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ जिंदा नहीं होगा बल्कि मुझसे बातें भी करेगा। हम लोग सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो देहाती हैरान कि ये तो मैंने मार डाला हो, खून में लथपथ है। हमारे नबी ने कहा भले खून में लथपथ है, वो जिंदा भी होगा और सवाल जवाब भी होंगे। हमारे नबी ने, सुनते जाना, साथ में कहना, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से वो ठेले की तरफ इशारा किया, वो जो बैग था उसकी तरफ इशारा किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रब कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। मेरे प्यारो, हज़रत उमर फरमाते, वो देहाती फरमाते, वो ठेले का मुंह खुला और वो जानवर ऐसे बाहर आया कि उसके बदन पर खून का नामो निशान भी नहीं था। वो देहाती तो हैरान, हज़रत उमर भी हैरान। अल्लाह के रसूल वो जिंदा, अल्लाह के रसूल वो मुर्दा जिंदा हो गया। हमारे नबी ने कहा जिंदा नहीं हुआ, अभी बातचीत शुरू होगी, अभी बातचीत शुरू होगी। और हमारे नबी ने उसको सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा मालूम? मनिल्लाह, बता अल्लाह कौन है? किसको पूछ रहे? अरे बोलो ना, किसको पूछ रहे? बनो मेरे दोस्तों, मोहब्बत करने वाले बनो तो मुस्तफा से करने वाले बनो। हाँ, मुस्तफा से करने वाले बनो। ये हॉलीवुड ने बॉलीवुड को छोड़ो भाई।
सब उल्लू बनाने के धंधे। हाँ, मालूम है एक ने मेरे को कहा था, मौलाना आपने कोई फिल्म देखी कि नहीं देखी? मैंने कहा नहीं भाई नहीं देखी नहीं। तो मुझे कहता है एक आई है वो देखने जैसी है। मैंने कहा भाई कारी अहमद अली देखने जाएगा तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा भाई, लोग जानते पहचानते, लोग क्या बोलेंगे कारी अहमद अली पिक्चर देखने आया। तो बोला ठीक है फिर आपको नहीं देखना तो कोई अच्छा। हमारे मौलाना अय्यूब साहब भी बैठे हैं माशाअल्लाह। तो उसने मुझे क्या कहा था, आप खाने नहीं आए मौलाना अय्यूब साहब? नमाज पढ़ने, इसलिए मैं सोचा खाना बच क्यों गया। मौलाना अय्यूब मेरे बहुत पुराने दोस्तों में माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और अभी तो माशाल्लाह उम्रा करके आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, वो मेरे को बोलता है फिल्म देखने को, तो मैंने उसको मना किया कि मैंने कहा 3 घंटे बर्बाद करने के काहे को जाने का। तो मेरे को कहता है लेकिन कारी साहब देखने जैसा है। मैंने कहा है क्या, मेरे को बता, कुछ अच्छा होवे तो मुंह पे कुछ बांध के चले जाते, लेकिन कुछ अच्छा तो होवे। कहता है माना वो हीरो है ना, हीरो हाँ, नाम भी लिया, मैं नाम नहीं लूंगा आपके सामने। कहता वो हीरो है ना, हीरो, वो उसको सामने 40 दुश्मन और सब उसको ठार किसे मारे। तो मैं बोला मर गया होगा। बोले वही तो कमाल है, मरा नहीं वो। बोला मरा कैसा नहीं, जब 40 तरफ से गोली आवे, भाई अभी यहाँ से कोई खड़ा हुए नहीं मेरे को ठार मारे तो अभी मैं सो जाऊंगा। तो 40 तरफ से गोली आवे तो कहा नहीं, जब गोली आवे तो इधर हो। मैंने कहा इधर से आवे तो कहा इधर हो जावे। मैंने कहा ऊपर से आवे तो कहा नीचे हो जावे, कहा नीचे से आवे तो कहा ऊपर हो जावे, कभी पाइप के अंदर चला जावे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता फिर वो हीरो के हाथ में बंदूक आई, उसने लिया, थार सब मर। मैंने कहा देखने वाला तो बेवकूफ, मैंने कहा सुनने वाला भी पाउली। मैंने कहा मेरे को पाउली बनाता है। वो 40 बंदूक चली तो नहीं मारा, नहीं इसकी एक बंदूक से चला। कमाल क्या है मालूम है, हम लोग वही देखने के लिए जाते हैं। यानी पाउली पने को देखने जाने वाला पावला नहीं होगा तो क्या होगा? सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? और फिर आकर कहेगा वाह क्या हीरो ने एक्टिंग की है, वाह वाह वाह। अरे पावला तेरे दिमाग के ठिकाने है कि सब बेच के आया है, कुछ सर में बचा है कि नहीं बचा है? उसकी तारीफ करता है जो झूठ बोलता है। वो मुझे कहता है वो हीरो ने ना वो ऊपर की बिल्डिंग से छलांग लगाई। मैंने कहा तू पहले माले से लगा। तो कहा था ना पहले माले से छलांग लगाऊंगा, फ्रैक्चर हुआ। मैंने कहा उसकी 14 माले से नहीं हुआ ना फ्रैक्चर, वो कोई लोहे का बना हुआ था। अच्छा ये सब झूठ। बंदूक से गोली लगी बोलो वो झूठ, 14 माले की बिल्डिंग से छलांग लगाया वो झूठ, जो उसने मोहब्बत किया वो, क्योंकि उसकी तो अलग बीवी है, वो मोहब्बत तो अलग हो रही है, वो भी क्या है झूठ। वो पूरा झूठा का झूठा, कमबख्त झूठा का झूठा। लेकिन उसका चेहरा हमको पसंद आया, उसकी बाल के स्टाइल हमको पसंद आए, उसके कपड़े का हमको कलर पसंद आया, उसके कपड़े का जो वेस्टर्न स्टाइल है वो हमको पसंद आया, उसका सिगरेट पीना पसंद आया, उसका उठना बैठना पसंद आया। क्या कसूर था हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कि उनका चेहरा नहीं पसंद आया, उनका तरीका नहीं पसंद आया, जबकि वो झूठा है और हमारे नबी से बढ़कर कोई सच्चा न था, न कोई है और न कोई आएगा। इससे बढ़कर क्या होगा कि हमारे नबी वो देहाती को कहते हैं ये जानवर जिंदा भी होगा और जिंदा हो गया। अब का सवाल जवाब होंगे। हमारे नबी ने पहला सवाल किसको पूछा? आवाज नहीं आ रही, बोलो किसको पूछा? जानवर को पूछा, मनिल्ला, ए जानवर तू अभी जिंदा हुआ ना, अल्लाह के हुक्म से हुआ ना, बता अल्लाह कौन है, बता अल्लाह कौन है। वो जानवर ने जो जवाब दिया ना, वो जवाब हमारे दिमाग में भी नहीं होगा। सही में बलेश्वर वालों, हमारे दिमाग में वो जवाब नहीं होगा जो जानवर ने जवाब दिया, क्योंकि वो जानवर नहीं बोल रहा था, कौन बुलवा रहा था? अल्लाह, क्योंकि मुर्दे को जिंदा किया अल्लाह ने। और फिर क्या कहा मालूम जानवर ने? तुमने सवाल पूछा अल्लाह कौन है, फरमाया वो जानवर ने कहा अल्लज़ी फ़िस समाई अर्शुहु व फ़िल अर्ज़ि सुल्तानुहु व फ़िल बहरि सबीलुहु व फ़िल जन्नति निअमतुहु व फ़िन नारि इक़ामुहु। वो जानवर ने कहा तुम ये पूछते हो अल्लाह कौन है? कहा अल्लाह वो है जिसका अर्श आसमानों पर है। वो जानवर कह रहा है अल्लाह वो है जिसका अर्श आसमानों पर है, अल्लाह वो है जिसका पूरा कंट्रोल सातों जमीनों पर है, अल्लाह वो है
جو چاہتا ہے تو سمندر دریا میں بھی راستے بنا دیتا ہے. اللہ وہ ہے جو جنت میں رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے اور جہنم میں آگ کے شعلے بھڑکا دیتا ہے. جواب دینے والا کون ہے؟ جانور نے کہا اب سننا، یہ حضرت عمر بھی کھڑے اور دیہاتی بھی کھڑے. جانور نے بتا دیا اللہ کون ہے، جس کا عرش، جس کا کنٹرول زمین، جو سمندر میں راستے بنائے، جو جنت میں رحمت دے وے، جو جہنم میں آگ دے وے. ہمارے نبی نے کہا من انا، بولو سبحان اللہ. دوسرا سوال ہمارے نبی نے جانور کو پوچھا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں. یہ تو سوال بہت عجیب تھا کہ میں کون ہوں. اور جانور نے پھر اپنے گردن کو اٹھایا، بولو سبحان اللہ. اور جانور نے پہلا جملہ کیا کہا معلوم؟ پہلا جملہ کہا انت خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. انت سید المرسلین، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں. بولو آپ سارے نبیوں کے. انت سید الاولین والآخرین، آپ اگلوں کے بھی سردار ہو اور پچھلوں کے بھی سردار ہو. ساری دنیا میں اللہ کے بعد اگر مرتبہ ہے تو صرف آپ کا مرتبہ ہے. بولو محمد الرسول اللہ. اور پھر کیا کہا؟ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. اس جانور نے کہا وہ جنتی ہو گیا جس نے آپ کی بات کو مان لیا، جس نے آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور وہ برباد ہو گیا جس نے آپ کو جھٹلا دیا. میرے السلام علیکم دوستو، یہ تھا قاری صاحب کا بیان. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کریں، اور پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.